में आप देखोगे तो ओके सॉरी तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्स 3.25 और ये 26 साथ में मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार. आई विल जस्ट रीड द वर्स इन ट्रांसलेशन. न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन् so as not to disrupt the minds of ignorant men attached to fruitive results of prescribed duties. A learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. So यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, a person in Krishna consciousness and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires. तो आज का टॉपिक भी यही है, differentiation by desire. A Krishna conscious person does not do anything which is not conducive to development of Krishna consciousness. He may even act exactly like the ignorant person who is too much attached to material activities, but one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification, whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna. Therefore, the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness. तो यहाँ पे इसमें भी देखोगे तो आप यहाँ पे प्रभुपाद एक्चुअली लिख रहे हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य. That is the end of all Vedic rituals. All rituals or performance of sacrifices and everything that is put into Vedas, including all direction for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. But through fruitive activities and sense gratification regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties. तो यहाँ पे वर्स में क्या बात हो रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पिछले कुछ वर्सेस में एक्चुअली कृष्ण जो है, पिछले के 3-4 वर्ष जो लास्ट क्लास हुआ था, तो उसमें अर्जुन को कृष्ण जो एग्जाम्पल दे रहे थे जनक महाराज का और खुद का, कि कैसे हमको क्या बोलते हैं एक्टिविटी करनी चाहिए, वर्क करना चाहिए विदाउट अटैचमेंट. इफ यू रिमेम्बर ये डिस्कशन था, क्योंकि लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन ये था कि हाउ टू चूज रोल मॉडल, समथिंग वाज दैट टॉपिक, राइट. तो कैसे हम जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको देख के सीखते हैं. तो कृष्णा इज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ जनक महाराज एंड हिमसेल्फ, कि कैसे उन्होंने मतलब बिकॉज अर्जुना इज बिविल्डर्ड, कि उनको लग रहा था कि ये वॉरफेयर में क्यों मुझे बोला जा रहा है इंगेज होने को, मतलब मुझे नहीं करना चाहिए लड़ाई. ही इज थिंकिंग कि वो सही नहीं है. बट ही अर्जुन कृष्णा इज ट्राइंग टू कन्विंस कि ड्यूटी करनी है अपनी. बट इवन दो, हाँ, उसके पहले हमने देखा था कि जो फुली लिबरेटेड है, वो इज फुली इनग्रॉस्ड है कृष्णा कॉन्शियसनेस, पूरी तरह से वो सेल्फ रियलाइज्ड है,
उनको कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल फॉर द सेक ऑफ एजुकेटिंग पीपल टू सेटिंग एन एग्जाम्पल वो एक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आया जनक महाराज का, और कृष्णा ने खुद का एग्जाम्पल दिया कि ही ऑल्दो ही इज, उनको कुछ भी अचीव करने को नहीं है पूरे यूनिवर्स में, ही डजंट हैव टू गेन एनीथिंग फ्रॉम हिज एक्टिविटी, बट स्टिल ही डज हिज एक्टिविटीज जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, सो दैट लोग उनको देख के गलत, मतलब वो अगर कुछ नहीं करेंगे तो लोग उनका एग्जाम्पल लेके गलत ना सीखे। तो इसके लिए जनरली हम ऐसा देखते हैं, जो हमारे श्रेष्ठ होते हैं उनसे हम सीखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को कन्विंस किया था, पिछले वर्सेस में हमने देखा था। तो अभी इस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस, सॉरी ये कौन सा है, 3.26 राइट, वेयर इज द, या इसमें देखोगे तो पहला लाइन ही है, अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires। तो ये लाइन है तो सिंपल, बट एक्चुअली वेरी, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। इट कैरीज अ लॉट ऑफ मीनिंग एक्चुअली। तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे आज। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखते हैं, इस चैप्टर में और इस 2 वर्सेस में भी आप देखोगे तो यहाँ पे प्रभुपाद ने नेक्स्ट 26 में भी डिस्कशन किया है कि हमने देखा कि कैसे इस चैप्टर में देखा हमने कि कैसे सैक्रिफाइस के बारे में बताया गया, सैक्रिफाइस रिकमेंडेड किया गया है कि वैदिक कल्चर जो है सैक्रिफाइस सेंटर्ड है, दैट हम लोग को यज्ञ करना चाहिए, विष्णु की वर्शिप करनी चाहिए, और भी देवी देवता की वर्शिप भी रिकमेंड की गई है, टू ग्रेजुअली जो हमारा कॉन्शियसनेस है उसको एलिवेट किया जा सके, राइट। क्योंकि जो मटेरियली मोटिवेटेड है, जिनके मटेरियल डिजायर्स हैं, उनको तुरंत से अगर मैं बोलूं कि पूरा सब कुछ छोड़ के पूरा कृष्णा पे फोकस करना, इट वुड बी लिटिल डिफिकल्ट, राइट, थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा वो। तो एक बार में सारा अटैचमेंट नहीं छोड़ सकते, तो इसके लिए, लेकिन तो पॉइंट ये है कि आपको फैसिलिटी दिया गया है, ठीक है, आपको दैट यू कैन, प्रोविजन दिया गया है कि ठीक है आप अपने डिजायर्स फुलफिल कर सकते हो, बट डिजायर्स फुलफिल करने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, मतलब सैक्रिफाइसेस करने होंगे विष्णु के लिए, देवी देवताओं के लिए भी आप कर सकते हो, मतलब क्योंकि हम देखते हैं सैक्रिफाइस यज्ञ होता था, सारों के लिए आहुति दी जाती थी, सबके लिए होता था। तो वो प्रोसेस दिया गया है कि हर किसी को आप प्लीज कर सकते हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो आप बेसिकली धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म का आप पालन कर सकते हो अपने अर्थ की प्राप्ति के लिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रिंकिंग की हैबिट है किसी को, तो उसको एक बार में आप बोलो कि ड्रिंकिंग छोड़ देने के लिए, तो वो नहीं छोड़ पाएगा, राइट। उसको थोड़ा कम करने को लाया जा सकता है, चलो 10 पीता है तो ठीक है 5 पी लो यार लेकिन एक बार में वो नहीं छोड़ सकता। तो वैसे ही हम मटेरियली हमारा जो मोटिवेटेड है, तो मैं एक बार में चलो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इसके लिए ठीक है, डिज़ायर है, आपके डिज़ायर फुलफिल करना है तो, लेकिन उसके लिए भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप बीइंग अ ह्यूमन आप जानवरों की तरह जियो, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, फ्रॉम अस सो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। सो यहाँ पे कृष्णा जो है अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरह से जो लर्नेड पर्सन होते हैं वो कैसे एग्जाम्पल सेट करते हैं इन जनरल, कि कैसे जो है वो, क्योंकि नेक्स्ट वर्स ये था कि इग्नोरेंट जो है उनको पता नहीं क्या करना है, तो इसलिए लर्नेड जो है उनको एग्जाम्पल सेट करना होता है। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको नहीं पता है क्या करना है, तो पेरेंट्स हैव टू सेट एग्जाम्पल फॉर देम कि किस तरह से वो सीखे। तो ऐसे ही जो लर्नेड पर्सन है वो एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हैं कि कैसे एक्ट करना चाहिए, और कैसे जो हमारा रिजल्ट है एक्शन का उसको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्पस में यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे कई बार ऐसा होता है, जो बहुत ही जो साधु, जनरली जो साधु लोग होते हैं, तो वो समहाउ दे, इवन दो कोई बहुत ही इग्नोरेंट है, बट समहाउ दे, वो देखते हैं कि उसकी प्रोपेंसिटी क्या है, उसकी जो भी प्रोपेंसिटी है उसके हिसाब से उसको एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, और उसको पता भी नहीं रहता है, बट उसका वो क्या बोलते हैं, वो प्योरिफिकेशन होता है उसका, वो कृष्णा के लिए वो कुछ कर रहा है तो उसका प्योरिफिकेशन होता है। जैसे मैंने देखा फॉर एग्जाम्पल,
मैं अद्भुतहरि प्रभु की एग्जांपल देता हूँ, आप लोग पता नहीं, कुछ कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो I have seen him because many boys would come and not everybody on same level. So somebody is not very much interested also, so much material desires या so much कुछ passionate है, कुछ जो भी interest है movie making में या कुछ भी, तो he would see their propensity and उसके propensity को देखते हुए उसको, जैसे किसी को वीडियोस बनाने का डिजिटल इज, तो उसकी प्रोपेंसिटी को वो कुछ तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी से रिलेट करके उसको वो एक्टिविटी में डाल दिया, बट ही इज गेटिंग वेरिफिकेशन। जैसे अभी रिसेंटली एक मैंने देखा था, एक वेब सीरीज बनाया, एक भक्ति टुडे करके कोई चैनल है, हाँ आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो उसमें दिखाता है कि वो जो है बंदा अपनी उसकी जो भी गर्लफ्रेंड थी या जो भी थी, उसमें दिखाता है कि that guy is becoming interested in Krishna consciousness, but उसके फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो क्या करता है कि अपनी, और देवर आस्किंग, उसको बुला रहे हैं कि चलो पार्टी करते हैं ऐसा वैसा, तो वो कैसा बहाना करता है, वो बहाना बना नहीं पा रहा, तो वो क्या कर रहा है कि वो बोल रहा है कि ये, एंड शी इज वेरी गुड इन दैट, क्या बोलते हैं, म्यूजिक का, वॉइस का एडिटिंग वगैरह में, तो वो प्रभुपाद का लेक्चर दे दिया, उसको एडिट करने को बोल दिया कि यार तुम ये कर दो प्लीज, एंड शी इज, वो सुन रही है, एंड शी इज, उसको रियलाइज हो रहा है बहुत ही ग्रेव है वॉइस इनका, बहुत ही हैवी है, एंड मैसेज इज ऑल्सो ऑब्वियसली वेरी हैवी, वेरी ग्रेव। तो जो इंटेलिजेंट होते हैं वो उस हिसाब से उसको, जो इग्नोरेंट होते हैं उसको एंगेज करता है। तो वन हु इज लर्नड, ही शुड लर्न द आर्ट हाउ टू एंगेज समबडी हु इज, जैसे बच्चों को भी कैसे एंगेज करना चाहिए वो हमको सीखना चाहिए। एनीवे दैट इज द पॉइंट हियर। तो यहाँ पे, बट एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, हाँ ये मैंने बोला कि जो मटेरियली मोटिवेटेड है उनके लिए पूरी तरह से तो माइंड को फिक्स करना इट्स मुश्किल है, तो लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, ओके I'll go to this 26th या हाँ, ये जो लास्ट के लाइन्स है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, I'll दिख रहा है तीन ये लाइन्स, तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, अ स्लाइटली डेवलप्ड कृष्णा कॉन्शियस पर्सन may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals. Because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties. तो यहाँ पे प्रभुपाद इंडिकेशन दे रहे हैं जिसकी स्लाइटली भी डेवलप्ड है कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप लोग में से कौन है यहाँ पे जो नए हैं? कोई नया है क्या? फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम? Okay, you still, I can assume that you have slightly developed Krishna consciousness. That's why you are sitting here. Otherwise, you would be roaming around in the temple, just taking darshan only. Yes, आप लोग भी नए हैं तो या, तो ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोग स्लाइट, बिकॉज हो सकता है आप लोग यहाँ पे पहली बार आ रहे हो, बट आपके पिछले जन्म का किसने देखा है कि आपने कितनी भक्ति की है, तो यू माइट हैव दैट ऑलरेडी डेवलप्ड कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे आ रहा है कि जो स्लाइटली डेवलप्ड है उनके लिए क्या आ रहा है, क्या करना है, why is this? हाँ, तो स्लाइटली डेवलप्ड जो है उनको क्या करना है, उनको they can directly engage in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. उनको कोई और, जैसे यहाँ पे आया था, मैंने अभी बताया था कि जिसके मटेरियली मोटिवेटेड है उनको, तो उनको थोड़ा सा ठीक है, उनके लिए प्रोविजन दिया गया है कि ठीक है आपको डिजायर्स हैं तो आप फुलफिल करने के लिए आप देवी देवता के पास भी जा सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे पॉइंट हमको ये समझना है कि जब लाइफ छोटी है कलयुग में और आपका कॉन्शियसनेस थोड़ा भी डेवलप हो गया, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, देन व्हाई टू वेस्ट टाइम, व्हाई टू गो थ्रू द लॉन्ग रूट, व्हाई नॉट डायरेक्टली इंगेज इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी मुझे सपोज मुझे प्राइम मिनिस्टर का एक्सेस है,
So if I know that Prime Minister is the supreme, I can get my desires fulfilled by through Prime Minister. Then why would I go through other chief minister and other जो भी ministers? क्यों जाऊंगा मैं? Doesn't make sense, right? Intelligent नहीं है वो. तो और इसका प्रूफ है कि भगवत गीता में भी कृष्णा बोल रहे हैं ये चीज, सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सारे धर्म बता रहे हैं कि ये सब करना चाहिए लास्ट में, बट बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दो एंड कम टू मी. एंड इवन श्रीमद् भागवतम ऑल्सो सेज कि in one of the verse, 11th canto 5th chapter 41 verse, I'll read here anyway, you can listen. O king, one who has given up all material duties and has taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, who offers shelter to all, is not indebted to demigods, in great sages, ordinary living beings, relatives, friends, mankind, or even one's forefathers who have passed away. Since all such classes of living entities are part and parcel of the Supreme Lord, one who has surrendered to the Lord's service has no need to serve such persons separately. तो यहाँ पे वही पॉइंट आ रहा है कि आपको सेपरेटली हर किसी को सर्व करने की जरूरत नहीं है. आप फॉर एग्जांपल प्रभुपाद एग्जांपल देते थे कि आप इनकम टैक्स भर रहे हो, तो वो एक इनकम टैक्स काफ़ी है. आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके अलग अलग टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है कि आप वाटर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब जगह टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है. एक टैक्स भरा, दैट इज़ फाइनल. तो वैसे ही कृष्णा मुकुंदा को वर्शिप कर रहे हो, देयर इज नो नीड टू गो फॉर एनीवन एल्स. नो डेमिगॉड्स, नो सेजेस, कोई पितृ ऋण और कोई भी ऋण नहीं रह जाता है. कोई भी लिविंग एंटिटीज के प्रति, डेमिगॉड्स के प्रति कोई भी ऋण नहीं रहता. तो ठीक है. सो दिस इज द, ये तो आ गया अपना जो 25 और 26 में है लिखा. अभी coming to the topic differentiated by desire. So for this, I'll go a little bit into psychology, because desire is somehow related to mind, right? So psychology is also, generally it is known to be study of mind, but is अगर आप देखोगे definition देखोगे तो in Greek भी, तो it's also considered study of soul also. ठीक है. तो सोल जो है वो एक्चुअली बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है माइंड से, क्योंकि क्योंकि थ्रू अ प्योरीफाइड माइंड हम सोल को परसीव कर सकते हैं. हमारा माइंड प्योरीफाई नहीं है. तो अभी यही आया था ना कि कृष्ण, जो मैंने पढ़ा था अभी ऊपर में, कि पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड अ पर्सन नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिफरेंशिएटेड बाय डिफरेंट डिजायर्स. तो हम क्यों नहीं परसीव कर पा रहे सोल को, आत्मा को या कृष्णा को? क्योंकि हमारे डिजायर्स जो है इम्प्योर है, राइट? तो हाँ, साइकोलॉजी पे मैं आ रहा था, स्टडी ऑफ सोल. तो सोल जो है माइंड से रिलेटेड है. तो अभी जनरली देखते हैं हम कि इवन अमंग डेवोटीज भी आप देखोगे रहता है ऐसा कि दो तरह का मिसकॉन्सेप्शन, दो एक्सट्रीम एक कॉन्सेप्शन है. एक में सोच रहे हैं, हम माइंड को समझते हैं कि माइंड जो है, मन जो है, वो माया है एक्चुअली. उसको हम इग्नोर करते हैं कि अल्टीमेटली हमको जो शास्त्र बोल रहा है, गुरु साधु शास्त्र, उसको ही सिर्फ फॉलो करना है. उसको सप्रेस करने की बात करते हैं, बट एक्चुअली सप्रेस नहीं कर सकते. भगवत गीता भी बोलती है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपी यस्य परम दृष्टवा निवर्तते. कि आप जो है, आप इंद्रियों को, सेंसेस को क्या बोलते हैं, विड्रॉ करके, माइंड को विड्रॉ करके किसी चीज से, उसको सप्रेस करके आप नहीं रह सकते हो. आप मतलब जब तक हमको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोअर टेस्ट को नहीं छोड़ सकते. होता है ना ऐसा. आप जनरली कुछ भी चीज आप देखते हो, आप जनरली आप ऊब जाते हो कोई चीज से, आपको उससे कुछ बेटर मिलता है, तभी आप पुराना वाला छोड़ते हो. ऐसा ही होता है ना. तो मन जो है, मन की यहाँ पे भगवत गीता भी बता रही है कि मन को हम सप्रेस नहीं कर सकते. मन को ऐसा नहीं सप्रेस नहीं कर सकते. तो जो मायावादी लोग होते हैं या फिर निराकारवादी लोग, वो क्या मन को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि डिजायर जो है, इच्छाएं जो है, उस कारण से ही प्रॉब्लम हो रही है. तो इसके लिए इच्छाओं को मारने की सोचते हैं. तो लेकिन वो पॉसिबल नहीं है. तो वो एक एक्सट्रीम हो गया.
तो लेकिन भगवत गीता हमको बताती है कि माइंड को रिजेक्ट कर, इग्नोर करने की बात नहीं बोल रही है, वो एड्रेस करने की बात बोलती है। और प्रभुपाद भगवत गीता में भी प्रभुपाद बोलते हैं, ये श्लोक है वो, मन मना मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, ये श्लोक आप लोगों ने सुना है, बहुत फेमस वर्स है। तो इसमें इसका मतलब होता है, ये चार चीजें बोलते हैं प्रभुपाद, अगर ये चीज हमने किया तो इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ भगवत गीता। हम लोग को वी हैव टू एंगेज वर्स सेज लाइक दैट, एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, become my devotee, offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. तो मन को भगवान में लगाने की बात हो रही है। थिंकिंग ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे हम्बल बनो, मुझे ओबेसेंसेस ऑफर करो। ऐसा अगर मेरे में ऑब्जॉर्व रहोगे तो श्योरली यू विल कम टू मी। तो हम देखते हैं कि वैदिक डायरेक्टिव जो है अबाउट माइंड इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो माइंड ऐसा नहीं है कि माइंड को इग्नोर करने की जरूरत है, रिजेक्ट करने की जरूरत है। फिर दूसरा एक्सट्रीम क्या आता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वैदिक जो सोर्स है, वैदिक जो नॉलेज है, उसमें इनफ साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, माइंड के बारे में, मतलब टू डील विथ माइंड ज़्यादा चीज़ नहीं दिया हुआ। इवन प्रभुपाद के बुक्स, डेवोटी समटाइम्स फील कि प्रभुपाद के बुक्स में भी उस चीज़ को ज़्यादा नहीं डील किया गया, उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया। तो इसके लिए क्या होता है, लोग बहुत सारे जो मार्केट में दिखते हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर बहुत सारे बुक्स आप देखोगे, एंड you will come across so many different kind of opinions, and there are different contradiction you will come across। कैसे माइंड को हैंडल करना है, इतने सारे डिजायर है, उसका क्या करना है, तो आप पजल्ड हो जाओगे कि क्या करना है। इवन भगवत गीता बोलती है व्यवसात्मिका बुद्धि जो है, एक ही कुरुनंदा बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना, कि जो बहुशाखा मतलब जो जो माइंड है, जो इंटेलिजेंस है, वो मैनी ब्रांच है, तो वो उसका जो पर्पस है वो मतलब फिक्स नहीं हो सकता है, वो परेशान रहेगा इधर। तो भगवत गीता बताती है, तो माइंड हमारा इधर उधर रहेगा, हमको बहुत सारे डिजायर्स फुलफिल, सो कैसे मतलब इसको हैंडल करें, पॉइंट ये आ रहा है, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन अगर हम ध्यान से अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली वैदिक साइकोलॉजी जो वेद जो है हमको बताता है, वो बहुत ही कंप्लीट और परफेक्ट पिक्चर देता है कि माइंड क्या है और कैसे वो काम करता है। और माइंड को अगर आप देखोगे तो वो पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब वो पूरा फोकस एक्चुअली माइंड है, माइंड पे फोकस। माइंड ही माइंड ही हमारा रीजन है जो कि जिसके कारण से हम यहाँ पे इल्यूजन में है, भ्रम में है। और माइंड ही सेम एट द सेम टाइम, माइंड इज द सेम आर वेरी रीजन जो कि हमको यहाँ से बाहर निकाल सकता है, इल्यूजन से बाहर निकाल सकता है। तो अगर हम ये वैदिक साइकोलॉजी समझेंगे माइंड की, तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस कर सकते हैं, एंड हमारी जो बुरी आदतें हैं, बुरी हैबिट्स हैं, उसको हम उसको you can mute it or maybe disconnect it। तो हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वैदिक साइकोलॉजी ऑफ माइंड। तो उससे क्या होगा कि वी कैन क्रॉस ओवर दिस वीकनेस जो हमको, जो कि, और एक्चुअली ये जो वीकनेस है इट हैज़ बीन इनहेरिटेड फ्रॉम प्रीवियस सो मेनी बर्थ्स एक्चुअली। तो ये जो डिज़ायर है एक्चुअली एक बर्थ का नहीं है, इट हैज़ बीन ऑफ सो मेनी बर्थ्स। तो ये सब मैं किस लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये फिलोसफी, सो दैट वी कैन टू कल्चर डिटैचमेंट एक्चुअली। क्योंकि क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो भी स्लाइटली डेवलप्ड है, why not go full fledged, why not adopt the full fledged method of Krishna consciousness, why to go half hearted, why to half hearted approach क्यों रखना है, full fledged क्यों नहीं करना है। तो जब तक हम क्या बोलते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में ये जो हमारा छोटी सी दुनिया है हमारे, उसमें कॉट अप रहेंगे, हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो डिजायर्स है, तो दैट विल मेक अस कंडीशन एंड विल रिमेन हियर। तो हाईएस्ट पर्सपेक्टिव जानना है हमको, तो वी शुड ट्राई टू नो दिस व्हाट दिस माइंड इज एक्चुअली। एंड तो या सो अगर हम समझेंगे डिजायर क्या है, माइंड क्या है, देन एक्चुअली वी कैन गेट आउट
गेट रिलीज फ्रॉम दिस ऑब्सेशंस, जो हमारे डिजायर्स का ऑब्सेशंस हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब इट्स वी कैन प्रैक्टिकली फील, अगर आप एनालाइज करोगे तो वी हैव सो मेनी डिजायर्स. सो इट इज वेरी एसेंशियल टू डिलिबरेट ऑन दिस फिलोसफी. तो अभी मैं श्रीमद् भागवतम में एक सेकेंड, ये खुला हुआ है आई थिंक. एनीवे इट्स गेटिंग लिटिल डिफिकल्ट, मैं इधर पढ़ लेता हूँ, नॉट वेरी बिग. तो भागवतम में बताते हैं, सॉरी कैंटो 3 चैप्टर 26 वर्स 31 में प्रभुपाद लिखते हैं अपने पॉपर्ट में कि माइंड जो है ना वो मोड ऑफ गुडनेस का प्रोडक्ट है. मोड ऑफ गुडनेस मतलब सतोगुण का प्रोडक्ट है वो. तो सतोगुण से उसकी वो बना है वो. और अगर वो जो, और माइंड के जो लॉर्ड है, माइंड के जो भगवान है, माइंड के जो प्रिसाइडिंग डीटी हैं, एक्चुअली वो, उनका नाम है अनिरुद्ध. अनिरुद्ध इज अगेन इज विष्णु हिमसेल्फ. विष्णु, अभी विष्णु चतुर्व्यूह आपने सुना होगा, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, ये 4 एक चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होता है विष्णु. दिस इज लिटिल टेक्निकल बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर इंफॉर्मेशन कि अनिरुद्ध जो है वो माइंड के हर एक चीज के एक्चुअली प्रिसाइडिंग डीटी होते हैं. तो माइंड के जो प्रिसाइडिंग डीटी है इज अनिरुद्ध. तो अगर वो one fixes upon the mind upon the lord of mind Aniruddha. So Aniruddha means basically you can consider Krishna because it's again Krishna's expansion only. तो if mind can be, तो अगर उन पे फोकस करेंगे तो माइंड जो है वो कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है. और नरोत्तम दास ठाकुर जो है, वन ऑफ द आचार्यज इन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ही सेज कि हमारा वी ऑलवेज हैव डिजायर्स, डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड. But if we transfer our desires to please the Supreme Personality of Godhead, that is the perfection of life. As soon as the desire is transferred to lording it over material nature, it becomes contaminated by matter. So desire has to be purified. कि अगर हम अपना जो डिजायर्स है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, किस लिए डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो because I prepared this notes and I found it very useful, very beneficial, so I wanted to. तो हाँ, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था कि डिजायर्स जो उस कारण से डिफरेंशिएशन हो रहा है कि हम यहाँ पे हैं या फिर भगवान के धाम में है, भगवान के साथ में, उसके कारण क्या है, डिजायर्स ही. तो डिजायर्स यहाँ पे आ रहा है. नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं कि अगर डिजायर जो हमारा ट्रांसफर करेंगे कि हम भगवान को प्लीज करने में लगाएं, तो दैट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ. और अगर वो डिजायर ट्रांसफर हो गया कि हम माया को भोगे, संसार को भोगने में लगाएंगे, तो वो क्या होता है, वो मैटर से कंटामिनेट हो जाता है. तो ऑल्दो वो सद्गुण से लगा है, लेकिन वो सिंस वो माइंड मैटर को भोगने में लगा हुआ है, इसके लिए वो कंटामिनेट हो जाता है. तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं एक पॉपर्ट में, अगेन 3.28.7 में, essential point is that the mind which is contaminated by material attraction has to be bridled and concentrated on the supreme personality of Godhead. तो माइंड को क्या करना है, उसको ब्राइडल मीन्स क्या होता है, जैसे घोड़े का होता है ना वो लगाम जो बोलते हैं, वो उसको कैसा कंट्रोल करना पड़ता है, अदरवाइज वो इधर उधर भागेगा. वैसे ही तो उसको ब्राइडल करना है, उसको कॉन्सेंट्रेट करना है. तो क्या होता है, जो कि मटीरियल अट्रैक्शन से कंटामिनेटेड है, तो उसको भगवान में कॉन्सेंट्रेट कराना है. तो वो एक, तो वो सोल्यूशन है यहाँ पे. तो माइंड हमसे यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि माइंड जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि उसको इनसब्सटेंशियल है, कुछ उसका सब्सटेंस नहीं है. हमने देखा कि माइंड क्या है, तो माइंड सत्वगुण से बना हुआ है. ऐसा नहीं कि माइंड को आप रिजेक्ट करना है आपको. माइंड सत्वगुण से बना हुआ है, और माइंड को क्या करना है, उसको, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ही बोल रहे हैं, मन मना मद भक्तो, माइंड को मेरे में लगाओ. और 20 श्लोक देखा, विषया विनिवर्तन्ते, मतलब ऐसा नहीं कि आप विषय से मन को हटा सकते, आपको हायर चीज में ट्रांसफर करना होगा उस माइंड को. तो व्हाट इज माइंड, व्हाट इज इट मेड ऑफ. तो माइंड जो है वो सतगुण से बना हुआ है. सतगुण क्या है, वो लॉर्ड अनिरुद्ध की एनर्जी है. सो एंड ही इज द लॉर्ड अनिरुद्ध इज लॉर्ड ऑफ माइंड, एंड
he is present as Paramatma in everyone's heart. But mind, we can also say as mind is energy of the super soul. तो ये जो सात्विक मेंटल सब्सटेंस है, ये जो मेंटल सब्सटेंस है माइंड, अगर वो भगवान में हम लगाएंगे तो अगर वो डेडिकेट करेंगे भगवान में तो इट बिकम्स ट्रांसफॉर्म इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड एज कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो वो कृष्णा कॉन्शियस में क्या होता है, भले माइंड जो है वो सतगुण में था, वो अभी अशुद्ध विशुद्ध सत्व में हो जाता है, इनफॉलिबल गुडनेस, जहां से वो वापस गिरता नहीं, विच इज अबव द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. ये आप लोग आगे थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में आता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तो माइंड जो कि मटेरियल अभी है, मैटर से अटैच है, वो एक्चुअली कृष्णा में लगाएंगे, उधर डेडिकेट करेंगे तो उसके बियॉन्ड चला जाता है. तो अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज इट मीन टू डेडिकेट द माइंड. माइंड को डेडिकेट करना है भगवान में, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली. तो हियर आई एम कमिंग टू दिस कनेक्शन ऑफ माइंड विद डिजायर. तो माइंड जो है एक्चुअली, अगर आप देखोगे वैदिक साइकोलॉजी के हिसाब से एक्चुअली, सो माइंड इज एक्चुअली द स्टोर हाउस ऑफ डिजायर्स. माइंड में सारे डिजायर्स स्टोर होते हैं. सो टू डेडिकेट द माइंड मीन्स टू चैनल द फ्लो ऑफ डिजायर्स टुवर्ड्स कृष्णा's लोटस फीट. तो डिजायर्स जो है हमारे, उसका जो फ्लो है, जो कि अभी मटेरियल चीजों में है, उसको उधर फ्लो कराना है कृष्णा की तरफ. तो माइंड और डिजायर का कनेक्शन समझ में आ रहा है ना. माइंड में सारे डिजायर्स हमारे स्टोर्ड हैं, तो माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. हम सोचेंगे कि माइंड को हम कंट्रोल कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है. इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इट कैन नॉट बी फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी पैसिफाइड विदाउट रेफॉर्मेशन ऑफ डिजायर. तो करना क्या है, डिजायर को प्यूरिफाई करना है. मतलब जैसे फिल्टर देखते हो ना आप, फिल्टर में कैसे फिल्टर लगे होते हैं, तो फिल्टर प्यूरिफाई करता है. तो वैसे ही माइंड में जो है हमारे डिजायर्स, बहुत सारे डिजायर्स स्टोर्ड है, तो उसको प्यूरिफाई करना है, मतलब वो चेंज करना है. मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आप कंट्रोल कर सकते हो. एंड दिस इज द की प्रोसेस ऑफ वैदिक साइकोलॉजी. अगर आप वही देखोगे, अब मॉडर्न जो वे है डील करने का साइकोलॉजी में, आजकल बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट होते हैं, बहुत सारे देखोगे वेस्टर्न फिलोसफी में भी देखो, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे फिलोसफीज हैं माइंड को लेके, और बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं. सो देखोगे कभी कभी लोग आते हैं, वो कुछ नए नए फिलोसफी लेके आएंगे कि आप चिल्लाओ जोर से, यू वेंट आउट योर एंगर, तो फिर यू विल फील फ्री. या फिर गुस्सा आ रहा है तो हंसो. लाफ्टर थेरेपी. या फिर एक बहुत ही बड़े हमारे एक फिलोसोफर हुए थे, सिगमंड फ्रॉइड. आप लोगों ने नाम सुना है उसका? नहीं सुना है? किसी ने नहीं सुना है? सुना है? आई डोंट नो वेयर इज ही फ्रॉम. whatever it is, that is not important, but the philosophy, उसका philosophy क्या था? उसका philosophy क्या था, that कि सेक्स डिजायर को है ना, उसको फ्री करने की बात थी, कि उसको कंट्रोल मत करो, आप उसको और फ्री करो. आप देन एक्चुअली, क्योंकि आप सप्रेस कर रहे हो उसको, इसके लिए आप दुखी हो, तो उसको फ्री करो आप. यू शुड. तो इसके लिए हम देखते हैं. तो मॉडर्न साइकोलॉजी है ना, दे विल कम अप विद सो मेनी डिफरेंट वेज. सो दैट इज द क्राइसिस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, कि वो ये समझ में नहीं आ रहा है उनको कि डिजायर्स जो है वही प्रॉब्लम है. बट वो सोच रहे हैं डिजायर्स को हम कैसे हैंडल करें, डिजायर्स का क्या करें. बट यहाँ पे आ रहा है आपको डिजायर्स को चैनल करना है, और वो सोच रहे हैं कि डिजायर्स को हमें रोकना नहीं है, डिजायर्स को क्या करें, डिजायर को फ्री करने की बात कर रहे हैं. डिफरेंट थियरी दे विल कम अप. So, yeah, what we have to do, we have to address our desires. We have to not suppress them, and we have to recognize them, and we have to channel them towards the lotus feet of Krishna. And जो mind की quality है, actually the mind की quality जो है, that is actually a quality of our desires.
हमारा माइंड जो है वो कितना प्योरिफाइड है, कितना सही है, वो एक्चुअली दैट कैन बी जज्ड बाय कि हमारे डिजायर्स कितने क्वालिटी, डिजायर्स कितने प्योर है या माइंड के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है जो है वो तो नहीं है, लेकिन जैसे कोई भी अच्छी चीज सोचो, भक्ति की तरफ सोचो, तो पहले वो गलत चीजों पे ही तुरंत ध्यान जाता है। I'll come to all the points. Let me complete because we don't have much time. और उसके We बाद we can take questions later. उसके बाद जो ये क्लियर कर जाता है माइंड भक्ति भाव से ये clear हो आप जाता है, बिकॉज आपकी माइंड आपके डिजायर्स है कि दैट यू तो उसी में लगता है भगवत भाव में ही लग जाता है फिर माइंड। यू वांट आप बैठना चाहेंगे नहीं सर, मैं पढ़ता हूँ गीता। आप लोग और दूसरे कोई पढ़ते हैं यहाँ पे? भगवत गीता कोई और पढ़ता है यहाँ पे? नहीं, ये लोग भी पढ़ते हैं, बाकी लोग भी पढ़ते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एनीवे, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेट मी गो थ्रू दिस। सो क्वालिटी ऑफ माइंड इज सिंपली क्वालिटी ऑफ डिजायर्स। तो लेकिन अभी हाँ, रियलिटी ऑफ माइंड क्या है कि रियलिटी ऑफ माइंड क्या है कि वो एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस है। रियल ट्रुथ ये है कि वो एनर्जी, सोल का एनर्जी है, दैट इज कॉन्शियसनेस। बट उसको कुछ हो गया है, दैट समथिंग हैज हैपेंड टू दैट कॉन्शियसनेस। क्या हुआ है उसको कि हमारा जो डिजायर है, जो कि कैरी कर रहा है माइंड, तुम्हारा कॉन्शियसनेस जो डिजायर कैरी कर रहा है, इज अभी वो क्या कर रहा है, वो कृष्णा की तरफ फ्लो नहीं करके वो मैटर की तरफ फ्लो कर रहा है। वो इट वांट्स टू लॉर्ड इट ओवर मैटर। मतलब हम जो भी मैटर, जो चीज भी हमारे देखते हैं, उस पर वो अपना आधिपत्य, अपना स्वामित्व जमाना चाहता है। तो या सो मटेरियल माइंड जो है वो मटेरियल थिंग है, विच इज सिंपली मीन्स द कंडीशन ऑफ मटेरियल अट्रैक्शन। और अगर हम अपने आप को देखेंगे, एंड इफ वी आर ऑनेस्ट विथ आवरसेल्फ, देन वी कैन सी कि हमारा माइंड जो है वो कितना अट्रैक्टेड है मैटर से, जी जड़ पदार्थ से। और सो उसको हम देखेंगे कि हमारी टेंडेंसी है कि हम मैटर का शेल्टर लेते हैं, हम कुछ ना कुछ चीज का आश्रय लेते हैं। तो अभी हम भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, हम मैटर का आश्रय ले रहे हैं। आश्रय ले रहे हैं मतलब उसका शेल्टर ले रहे हैं, मतलब कि अभी जो भी हमारे डिजायर्स हैं उसके हिसाब से, जैसे अभी कभी हम दुखी हैं या फिर फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो चलो जो भी इंटरेस्ट हमारा बना हुआ है, चलो चलो बाहर जाते हैं, मूवी वूवी देख के आते हैं, मन थोड़ा फ्रेश करते हैं, या चलो दोस्तों से मिल के आते हैं। तो इट्स ऑल मैटर एक्चुअली। या फिर जो भी गंदी आदतें अगर किसी को लगी हुई है, एक्चुअली ऑल इज more or less it's all impure only, but again some gross sinful desires, sinful habits हैं हमारे, तो उसमें फिर शेल्टर ले लेते हैं। तो हम मैटर में शेल्टर लेते हैं। तो ऐसा ही है हमारा। तो माइंड का जो फंक्शन है वो हम देखेंगे। माइंड का फंक्शन है तो वो क्या है? माइंड का फंक्शन आप देखोगे तो थिंकिंग करता है, इमेजिन करता है, विजुअलाइज करता है, इमोट करता है, मतलब जो भी हम फील करते हैं, अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये सब माइंड का फंक्शन है। और जो माइंड का जो मूवमेंट है, एक्चुअली जो भी ये सब माइंड का जो भी फंक्शन है, वो एक्चुअली रियल है। उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा माइंड के कारण से माइंड हमारा कैसे मूव कर रहा है, हमारे डिजायर्स के अकॉर्डिंगली हमारा माइंड मूव कर रहा है। और ये जो डिजायर है, उसके कारण हमारे जो इतने सारे डिजायर है, तो इसका लिए हमारा जो माइंड है ना, मेंटल फंक्शन है, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। नहीं होता है कि नहीं? इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। हमको समझ में नहीं आता है कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो भी हमको नहीं पता है। तो जैसे हमने बताया कि हम माइंड को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑफ काइंड ऑफ मॉडर्न वे दे डील विथ स्क्रीन थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, सो मेनी थेरेपी। बट एक्चुअली देखोगे तो ये सब एक्चुअली इट्स नॉट फुली, क्या बोलते हैं, सफिशिएंट नहीं है माइंड को हैंडल करने के। तो हमारे पास माइंड का बहुत ही सुपरफिशियल परसेप्शन है, बहुत ही सुपरफिशियल परसेप्शन है। मतलब कि हमको लग रहा है कि जो अभी आगे मन में चल रहा है उसको ही हम देख रहे हैं, राइट? बट एक्चुअली माइंड, जैसे मैंने बताया कि इसमें स्टोर हाउस ऑफ योर डिजायर्स।
तो आपके पिछले जन्म से जितने भी डिजायर्स हैं एक्चुअली वो सारे स्टोर्ड हैं। तो कभी कभी आप देखोगे कि और ये जो डिजायर्स हैं वो हमारे माइंड में बबल अप होते रहते हैं। तो जैसे प्रभुपाद एनालॉजी देते हैं कि जैसे एक पॉन्ड है, ठीक है, वाटर पॉन्ड, वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, लेक है कुछ, उसमें आप देखोगे अचानक से शांत है, अचानक से बबल निकलता है। तो वैसे ही आप शांति से बैठे हो, आपका माइंड लग रहा है कि ठीक है, बट अचानक से पता नहीं आपको कुछ तो बर्स्ट हो जाएगा, कुछ तो बुरा डिजायर आएगा। तो वो सब क्या है एक्चुअली, पिछले कई जन्मों से बहुत सारे डिजायर स्टोर्ड हैं हमारे, बहुत सारे। तो कब अचानक से जाके वो, अभी जैसे क्या होता है वाटर में, क्या होता है वो कुछ गंदा, कुछ वेजिटेशन है उसका, क्या बोलते हैं, उससे गैस वैस निकलता है और वो बाहर निकलता है। तो वैसे ही बहुत अंदर में बहुत दिनों से है, अचानक से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमको लगता है, और फिर कई बार ऐसा होता है आप देखोगे कि हम किसी से अचानक से आप किसी पे गुस्सा हो गया और गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, और फिर आपको रियलाइज होता है अरे ये तो मैं नहीं था, ये पता नहीं कोई और था। बट एक्चुअली वो आप ही थे एक्चुअली, वो आप ही के, जैसे बोलते ना, जैसे आपके घर होते हैं, घर में आप बेसमेंट में मान लो, या बेसमेंट में, या फिर जो भी मतलब गैराज वराज होता है, वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें स्टोर की होती है। तो वो आपका ही घर है, आपने ही स्टोर करके रखा था, तो आपके ही घर में स्टोर किया हुआ था, और वो अचानक से निकल गया। आप बोल सकते हो अरे नहीं मैं नहीं था, लेकिन वो आपकी ही डिजायर्स बाहर निकले। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो, ये डिजायर मतलब ये किस तरह से कितना कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली, मतलब ये कितना कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है माइंड को। तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ माइंड। संस्कृत टर्मिनोलॉजी अलग है, बट मैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकली हम समझते हैं उसके हिसाब से, प्रभुपाद भी यूज करते थे ये वर्ड, सरफेस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो सरफेस माइंड जो हम, जो अभी है, और सबकॉन्शियस जो हमारे अंदर जो स्टोर्ड है बहुत सारा, जो कि डीप रूटेड हमारे डिजायर्स है, जैसे लाइक बेसमेंट में आपने स्टोर करके रखा हुआ है अंदर, वो कब आएगा बाहर पता नहीं। तो हम देखते हैं कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी लोग यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको समझ में आ रहा है कि दिस इज राइट थिंग, तो हम भले ही क्या बोलते हैं नाइस एटमोसफेयर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अपने घर में भी हम मान लो डीडीज के फोटो लगा के रखेंगे, और अच्छा खाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि अचानक से भाई डिजायर्स जो स्टोर थे वो अचानक से बस्ट आउट हो जाते हैं। तो इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो भले ही ऊपर ऊपर से हम सरफेस जो है बराबर से करके रख सकते हैं, लेकिन डीप इनसाइड जो है डिजायर्स तो हैं बहुत सारे, जो कि वो कब निकलेंगे, कब उसको हमको डिस्टर्ब करेंगे वो पता नहीं। तो भले ही हम उसको ओन करें ना करें, बट वो है हमारे ही। तो ये जो, सॉरी, हाँ, तो ये जो राइजिंग होता है डिजायर्स का, बबल्स का, अनएक्सपेक्टेड, वो जो कि हमारे सबकॉन्शियस में है और जो हमारे सरफेस पे आता है, ऊपर पे आता है, तो ये जो है हम देखते हैं कि ये इट कैन एक्चुअली, इट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मैनी टाइप ऑफ, एनी टाइप ऑफ एक्चुअली सेंसुअल इंप्रेशन, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो इस लाइफ में भी, अगर आपने कोई, क्या बोलते हैं, बचपन में मान लो आपने कुछ किया होगा, अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो यू कैन एक्चुअली सटनली आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे आपने फॉर एग्जांपल अभी मैं, हमने मैंगो खाया हुआ है, अगर मैं बोलूँ कि मैंगो के बारे में, तो यू कैन थ्रू योर माइंड यू कैन जनरेट दैट एक्सपीरियंस, you can certainly taste that experience. So mind is so powerful. Prabhupada would say this is like spool of photographic films. फोटोग्राफिक फिल्म देखे ना, उसका स्पूल, वो उसमें ढेर सारे पिक्चर्स स्टोर्ड है, तो इट कैन रिप्रोड्यूस दैट। एंड हमारे ड्रीम्स में भी यही होता है एक्चुअली, हमारे ड्रीम्स में भी यही होता है। ड्रीम्स में भी जो है, मुझे पिछले जो बहुत पुराने जो हमारे स्टोर हैं हमारे डिजायर्स, वो एक्चुअली वो क्रिएट करते हैं आपके सपनों में पिक्चर्स। कभी आपने मान लो माउंटेन देखा हो, प्रभुपाद गिव दिस एग्जांपल, आपने सपोज माउंटेन देखा हुआ है, माउंटेन का एक्सपीरियंस है आपको, गोल्ड का भी एक्सपीरियंस है सपोज, आजकल तो गोल्ड ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, बट फिर भी फोटो तो देखा होगा।
तो गोल्ड का एक्सपीरियंस है, तो वो माउंटेन, गोल्ड का माउंटेन क्रिएट कर देगा सपने में, या कुछ भी क्रिएट करेगा, मतलब इट कैन प्रोड्यूस न्यू थिंग्स ऑल्सो बेसिस द जो भी एक्सपीरियंस हमारा है. तो देयर इज टू काइंड्स ऑफ स्टेज देयर, स्वप्न एंड सुषुप्ति, एक ड्रीम और एक ड्रीमलेस. तो एक ड्रीम देखते हैं, एक ड्रीम वाला स्टेज होता है और एक ड्रीमलेस होता है. एक ड्रीमलेस भी होता है हमारा, जिसमें कि आप ड्रीमलेस स्लिप भी होता है, राइट. इट्स नॉट दैट ऑलवेज यू सी ड्रीम. तो ड्रीम में भी एक्चुअली ये जो डिजायर्स है उसके कारण ही हम एक्चुअली देखते हैं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्ट्रेस दिस पॉइंट कि ये जो डिजायर्स है एक्चुअली कितने पावरफुल है, माइंड है कितने पावरफुल है एक्चुअली. सो ये जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का इंटरकोर्स चलता रहता है, एंड इट कैन प्रोड्यूस सो मेनी थिंग्स एक्चुअली. सो वी सी माइंड क्या है हमारा, इट्स स्टोर हाउस ऑफ ऑल आर experiences and desires. तो अभी अभी इसको डील कैसे करें, तो ऑलरेडी मैंने बताया, बट फिर भी एक और श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, कैंटो 7 चैप्टर 9 21 वर्स में. सो बोलते हैं कि ओ लॉर्ड, ओ सुप्रीम इटर्नल, बाय एक्सपैंडिंग योर प्लेनरी पोर्शन यू हैव क्रिएटेड द सटल बॉडीज ऑफ द living entities through the agency of your external energy, which is agitated by time. Thus, the mind entraps the living entity in unlimited varieties of desires to be fulfilled by the Vedic directions of Karma Kanda and the 16 elements. Who can get free from this entanglement unless he takes shelter at your lotus feet? तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि ये हमने देखा कि तो अभी हम आ रहे हैं कि ये तो हमने देख लिया, माइंड है, माइंड में ढेर सारे डिजायर्स हैं, तो उसको हम सप्रेस नहीं कर सकते, उसको माइंड को रिजेक्ट नहीं कर सकते. माइंड के जो डिजायर्स उसको चैनल करना है. लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पुराने डिजायर्स हैं जो कि उनको पता भी नहीं है क्या क्या है, क्या क्या हमने डिजायर किए थे, क्या क्या हमने एक्सपीरियंस किया है, और इट गिव्स अस ट्रबल. तो अभी जो मॉडर्न मेथड है वो तो बोल रहा है कि भाई ठीक है, अब जो भी इंगेज जैसे भी करना है फ्री करो अपना, बट दैट डजंट वर्क, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, दैट इज नेवर गोइंग टू वर्क. क्योंकि वो जो रूट है वो रूट पे जा ही नहीं रही है कि माइंड का फंक्शन क्या है, माइंड की रियलिटी क्या है, उसके ऊपर जा ही नहीं रही. तो यहाँ पे आ रहा है कि ये बता रही है कि माइंड जो है वो हमको एंट्रैप किया हुआ है द लिविंग एंटिटी को विथ अनलिमिटेड वेराइटी ऑफ डिजायर्स, एंड उसको फुलफिल कैसे करना है, बाय द वैदिक डायरेक्शन ऑफ कर्म कांड. वैदिक डायरेक्शन जो दिए हुए हैं, यज्ञ तप जो भी हमारे, वो सब करने का प्रोविजन दिया हुआ है. लेकिन कैसे फ्री कर सकते हैं विदाउट टेकिंग शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, इट इज नॉट पॉसिबल. तो हमको ये समझना चाहिए कि माइंड में बहुत सारे डिजायर्स हैं, उनको ट्रबल करेंगे, इट विल कम एट सरफेस, सम कभी ना कभी तो आएंगे सरफेस पे. तो हमको ये समझना चाहिए कि ये डिजायर्स भले ही हमने पहले के आ रहे हैं, बट वी शुड नॉट एंटरटेन देम. हमको इफ वी हैव दिस नॉलेज कि हमको, बट हमारे साथ होता है कि हमको सिंस ये नॉलेज नहीं है तो हम उस डिजायर को एंटरटेन करने लगते हैं. हमको लगता है कि ठीक है, हमारा माइंड यही है, हमारा मन ये कर रहा है, हमारा मन ये करने को कर रहा है, तो हम करने लगते हैं. बट हमको उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल करना है. ठीक है, हमारे मन परेशान हो रहा है, उसको लेट इट गो, उसको एंटरटेन नहीं करना. हमको कोशिश इसके लिए अभ्यास की करने की, प्रैक्टिस करने की बात आती है कि हमको उसको मन को है एक्चुअली कृष्णा में लगाने की कोशिश करनी चाहिए. और कृष्णा में लगाएंगे तभी एक्चुअली इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज इसका सोल्यूशन है ही नहीं. वो आपको ट्रबल देगा ही देगा. इट डजंट हैव एनी सोल्यूशन. क्योंकि वो अगेन फिर आप उस पर इंगेज करोगे, माइंड डिजायर आए, उसको फिर से आप एंटरटेन करोगे, इट विल फर्दर क्रिएट रिएक्शन, इट विल फर्दर क्रिएट साइकिल. तो आप फिर क्या बोलते हैं, वो साइकिल चलता रहेगा. तो इसके लिए यहाँ पे आया क्या था, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, 3.26 में पॉपट में क्या लिखा है प्रभुपाद ने, हाँ लिखा हुआ ये जो स्लाइटली डेवलप्ड है उसको पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस होने की. तो माइंड में जो भी चल रहा है उसको ज्यादा क्या बोलते हैं, उस पर पानी डालने की जरूरत नहीं है उसको, और उसको वाटर नहीं करना है. दैट इज हाउ इट इज एक्चुअली फंक्शनिंग. एक्चुअली इट विल कम, दैट इज हाउ ऐसे ही फंक्शन है एक्चुअली, बिकॉज माइंड इज कनेक्टेड टू डिजायर्स.
तो यहाँ पे डिजायर्स को एक्चुअली प्योरीफाई करने की बात आ रही है. यू कैन नॉट कंट्रोल और सप्रेस योर डिजायर्स, यू हैव टू चैनल इट टुवर्ड्स कृष्ण. और माइंड का क्या काम है, यहाँ पे प्रभुपाद एक्चुअली फुटनोट पे लिखते हैं, इस यहाँ पे इस माइंड पे एक्चुअली स्टार लगा के फुटनोट पे लिखते हैं कि माइंड इज क्या कर रहा है, माइंड क्या कर रहा है, माइंड इज ऑलवेज प्लानिंग हाउ टू रिमेन इन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. तो आप देखोगे तो क्या कर रहा है, ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलता आ रहा है हमारा, राइट. माइंड इज ऑलवेज प्लानिंग हाउ टू रिमेन इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. कि आज इवन आज कुकिंग क्या करना है, या फिर बिकॉज मैं कुकिंग का इसके लिए एग्जाम्पल दिया बिकॉज अभी मैं अकेले हूँ घर पे, तो मुझे कुक करना पड़ता है. तो स्ट्रगल चलता रहता है वो माइंड का कि क्या करूँ, स्ट्रगल चलता रहता है, मतलब जॉब का ये वो, मतलब सो मेनी थिंग्स एक्चुअली भी है. तो स्ट्रगल चलता रहेगा और डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप लगे रहोगे उसको. बट दैट्स वाई यहाँ पे कृष्ण, यहाँ पे क्या आ रहा है, कृष्णा क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि लर्नेड आदमी से सीखो एंड डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट. ठीक है, अभी हमारा कंडीशन वो तो नहीं हुआ है कि हम अपने बॉडी को बिना खाए सस्टेन कर सकते हैं. ठीक है, उसको विदाउट अटैचमेंट करना है. जो भी कुकिंग कर रहे हैं उसको भगवान को ऑफर करना है, एंड देन प्रसाद वी हैव टू टेक इट, एंड वी शुड नॉट बी टू अटैच टू सो मच ऑपुलेंट प्रसादम. एंड इवन कोई भी चीज आप देख लो, वी शुड नॉट बी अटैच टू एनीथिंग एक्चुअली. वी शुड डू आवर ड्यूटी, एंड बिकॉज अल्टीमेटली वी शुड अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, एंड व्हाट इज द बेसिस, उसका कारण क्या है, आवर डिजायर्स एक्चुअली विच इज कीपिंग अस हियर. जो कि वो प्लान कर रहा है कि कैसे मटेरियल वर्ल्ड में और हमारी लंबी लाइफ और लंबी करियर बनाने की सोच रहे हैं, जॉब और ये वो, गुड फ्यूचर, गुड करियर. बट इज इट रियली, डू वी हैव एनी रियली रियल प्रॉमिसिंग फ्यूचर अहेड? मटेरियल लाइफ में नहीं है. सो माइंड जो है वो it is struggling to pay bills and so many things actually. So yeah, so it's not possible to know our desires. हाँ, एक और एग्जांपल आता है कि जैसे आप देखोगे कोई कोई छोटी बच्ची भी है. Actually I heard this example from one of the lecture when he was telling like कोई उसकी छोटी बेटी है and she is although 2-3 years old but she is very concerned कि वो कौन सा ड्रेस पहनना है, उसको कैसा दिखना है, वो सब कंसर्न. तो जनरली आप देखोगे फीमेल में ये टेंडेंसी होती है. और इसका मतलब ये नहीं कि मेल को अटैचमेंट नहीं, मेल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट्स. बट तो वी कैन सी वो डिजायर्स जो है उस कारण से हमको डिफरेंट बॉडीज भी मिलती है. तो ये ह्यूमन लाइफ हमको मिला हुआ है, उसको वी सी द एग्जांपल ऑफ भरत महाराज. वो डिजायर उन्होंने उधर वो हिरन पे ट्रांसफॉर्म किया, वो हिरन की बॉडी मिल गई. तो ये जो हमारा वो डिजायर है वो हमको क्या बोलते हैं, हम भगवत गीता बोलती है ना, यम यम वापी स्मरण भावम, जैसा आपका डिजायर होगा उसके हिसाब से आपको बॉडी मिलती है, राइट. इट क्लियरली सेज भगवत गीता. तो वी कैन अंडरस्टैंड. सो तो व्हाट इज द बेसिक डिजायर विच हैज ब्रॉट अस हियर. तो सारे डिजायर तो हमने देख लिए कि डिजायर तो ये डिजायर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. बट द रूट डिजायर क्या है, दैट इज एक्चुअली, कौन बताएगा? What is the root desire what is the basic desire which is keeping us here? Yes. To enjoy and control. To enjoy and control. In other words, to be God. Actually, we want to be God. That's why we are here. We want to imitate as God. We want to enjoy and we want to control. But actual enjoyer is Krishna. We are not the actual enjoyer. Krishna is the actual enjoyer. Bhoktaram yagya tapsam sarvaloka maheshwaram. He is the real enjoyer. We are not, but we are trying to enjoy. तो ये डिजायर जो है रूट डिजायर है, जिसके कारण फिर वो फर्दर ढेर सारे डिजायर स्टोर हो गए. तो अगर ये रूट डिजायर को हम केटर करेंगे, रूट डिजायर को हटाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए कुछ पॉइंट क्या आ रहा है कि मन मना भाव मत भक्तो, कि मेरे बारे में सोचो. यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ा भी भागवतम का
कि जब तक वो हमारा क्या बोलते हैं, हम भगवान को शेल्टर नहीं करेंगे, डिजायर को कृष्ण में चैनल नहीं करेंगे, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस एंटेंगलमेंट। तो और भगवत गीता एक चीज और बोलती है, ईश्वरो हम अहम होगी, दैट आई एम द एंजॉयर, आई एम द ईश्वर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, भगवत गीता बोलती है। तो ये जो टेंडेंसी है, मध्वाचार्य एक्सप्लेन करते हैं, असुर, असुर वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो जनरली असुर वर्ड हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को लगता है कि कोई तो सिंगिंग होगा या फिर लाल लाल आंखें होंगी। तो एक्चुअली असुर का डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन देते हैं मध्वाचार्य, कि असुर मतलब होता है, संस्कृत वर्ड का उसका अगर ब्रेक करोगे तो उसका मीनिंग बनता है असुन और रमते, मीन्स लाइफ और एंजॉय, who wants to enjoy this life. Ramate means who want to enjoy this life. So anyone who wants to enjoy this life is asura. So practically we all are asura, because that's why we are here. That is the reality. This is very harsh truth. बट यही अगर आप बाहर के लोग बोलोगे या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में बोलोगे तो दे फील, अरे यार एंजॉय करने में, अपना डिजायर को फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम, बट दे आर नॉट गेटिंग द पॉइंट कि उस कारण से कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं। यू आर, इसके लिए आप बाहर देखोगे तो पीपल आर हाउ ट्रबल्ड दे आर, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, अपने डिजायर का करें क्या। इतने सारे जो डिजायर आ रहे हैं वो फ्री करने से नहीं होगा। तो दिस इज, तो वो जो रूट है उसका, टू एंजॉय एंड कंट्रोल, दैट इज लाइन डाउन देयर। तो वो कैसे रेक्टिफाई होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। एंड वी सी दैट our acharyas has given song कि कैसे वो, although they are very qualified but still they say that कि we are so fallen and we have so many of sinful desires in our heart, and that like that they are praying. So we have to admit our weakness, recognize our weakness, that there are so many desires actually, and we can see practically, even though you are practicing Krishna consciousness, but still you can feel that so many desires comes up at the surface. Look, तो यहाँ पे जो मैंने पहले भी पढ़ा था, एसेंशियल पॉइंट ये है कि माइंड विच इज कंटामिनेटेड बाय मटेरियल अट्रैक्शन, it has to be bridled and concentrated on the Supreme Personality of Godhead. And how we can do that? By chanting this Hare Krishna Maha Mantra. Because this is very powerful process. This is very powerful process. This is not something cheap actually. हमको लगता है we do not understand the importance of this chanting actually. Because we are getting direct connection. We can actually directly, Prabhupada stressed the importance of chanting. So we can directly connect with this chanting Hare Krishna through Krishna, to Krishna by chanting this Hare Krishna. And Chaitanya Mahaprabhu has given this Hare Krishna mantra. तो भले ही हमारा मन लगे ना लगे, वी शुड सी कि हाँ, माइंड हमको परेशान करेगा ही करेगा, उसका फंक्शन ही है, उसमें बहुत सारे डिजायर स्टोर है। तो लेकिन हमको मन को भगवान में लगाना है। वी शुड, दैट्स व्हाई वी शुड, प्रभुपाद वुड से, मन नहीं लग रहा है तो जोर से चैंट करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We have to bring back the mind to Krishna. It's like plugging the soul to the internal potency of the Lord. चार्जर लगाते हैं, चार्जिंग करते हैं ना फोन का, वैसे ही चार्ज कर रहा है। तो विद दिस आई विल एंड हियर। कैन आई टेक क्वेश्चंस और आई हैव टू एंड? यस, so that is again different discussion. It's all again Vishnu only. So but in Bhagavatam it's technically it's said as Aniruddha. Then there are different expansion of Vishnu. So particularly it can be Paramatma, can be Aniruddha. Aniruddha and Kshirodakshai Vishnu, there must be some. I also am not very much clear about the relation that we can see. But yeah, when the yeah. प्रभु जैसे डिजायर के बाद हम गए थे, तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस है तो हम हमारे डिजायर्स को सप्रेस कर सकते हैं। नहीं, सप्रेस नहीं करना है, वही तो मैं बोला, सप्रेस नहीं करना है, सप्रेस नहीं करना है। हाँ, चेंज करना है। इसलिए तो मैंने बोला डिजायर परेशान कर रहे हैं तो हरे कृष्णा बोल के आपको मन भगवान में लगाना है। ये तो हमारा हो गया, पर अभी गृहस्थी में कैसे रहते हैं कि मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, तो उनके भी कुछ डिजायर रहते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारा बच्चा, तो वो भी मैंने बताया ना कि वी हैव टू डू आवर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट।
वो वही था ना, इसका पॉइंट यही था, लर्नेड मैन। वो बता रहे हैं कि राजा जनक का वहाँ एग्जाम्पल दिया, राजा जनक ने सब कुछ छोड़ नहीं दिया था, राजा जनक वॉज डूइंग हिज ड्यूटी, उसका किंगडम था, उसकी फैमिली थी, अमरीश महाराज उनकी फैमिली थी, बट विदाउट अटैचमेंट आप ड्यूटी करो। माइंड जो है वो परिवार को नहीं देना है, माइंड कृष्ण को देना है। आप सुपरफिशियली यू कैन डू थिंग्स फॉर देम, बिकॉज द पॉइंट इज, यस, पॉइंट इज यहाँ पे क्या आ रहा है कि टाइम कम है, स्लाइटली डेवलप भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, तो वाई टू गो थ्रू लॉन्ग रूट, टेक द शॉर्ट रूट। प्रभु जी, ये भी तो भागवत पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इनको पूरा पढ़ने में इनको समझ में आएगा जब रामायण पढ़ेंगे तब। भगवान का भी रामचंद्र जी का है, उन्होंने हाँ, तो वो हम भगवान में मन कैसे लगेगा, भगवान के बारे में, भगवान के बारे में जितना हम जानेंगे तो उतना मन हमारा लगेगा, भगवान के बारे में जितना हम जानेंगे उतना हमारा मन लगेगा। तो इसके लिए चैंटिंग बताया गया, चैंटिंग आप करोगे आपके हृदय की शुद्धि होगी, और आपको और भगवान के बारे में जानने का मन करेगा, और जानोगे तो और चैंटिंग करने का मन करेगा, बिकॉज यू विल क्राई, आप उसका भगवान का नाम, बिकॉज अभी मटेरियल वर्ल्ड में भी किसी से प्यार मोहब्बत होता है लोगों को, तो दिन भर सोचते रहते हैं ना उसके बारे में। तो वी हैव टू वो लव उधर डायरेक्ट करना है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी। आप यहाँ पे फंसे हो, इफ अगर आप नहीं लग रहा है, नहीं फंसे हो कि ठीक है सब कुछ बराबर चल रहा है, थोड़ा डिजायर्स अपने सेटिस्फाई कर लेते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति कर लेंगे, तो ठीक है, इट विल टेक टाइम। दैट ऑप्शन इज, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं की वजह से अल्लाह को माना तो ठीक है, नहीं तो तुम नरक में जाओगे हमेशा के लिए, वैसा फिलोसफी नहीं यार बता रहे हैं। स्टिल यू हैव चांस, यू कैन ग्रेजुअली, बट व्हाई टू गो फॉर ग्रेजुअल? इंटेलिजेंस है तो ग्रेजुअल क्यों जाना है? तो दैट्स वाई, या एनीवे, दिस इज 325 and 26, 325 26, चैप्टर 325 26, तो कर देता हूँ एक से, ठीक है, ओके, आई विल एंड हियर बिकॉज आई एम गेटिंग प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। डोंट थिंक दैट प्रेशर। तो ठीक है, I'll end here. Thank you all for patiently listening. I don't know how much of it made sense, but I was trying to. I heard in one of the lecture by His Holiness Suhotra Swami Maharaj. He's very intelligent, very intellectual. So okay, I'll end here. Thank you. Hare Krishna. So we have prasadam. Yeah. Okay. Just wait for 2 minutes. So we will thank Prabhuji by chanting. It's okay. It's okay. No problem. They're already saying Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.